students. Today we will discuss the topic refraction at convex spherical surface. So इसके लिए first case साढ़े को है when object lies in air medium and image formed is real. तो diagram ਤੁਸੀਂ बेटा देख रहे हो कि साढ़े को ये convex spherical surface है. ਜਿਹੜਾ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ1 ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ2 ਹੈ. ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ. ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਮਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ. ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ. ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ रेयर मीडियम और ये साढ़े को है इधर दिस इज डेंसर मीडियम. वो साढ़े को पॉइंट ऑब्जेक्ट है. इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को जी इंसीडेंट रे ऑफ लाइट है वो ए पॉइंट से इंसीडेंट हो रही है ਤੇ ਸੀ ਏ ਐਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੋਰਮਲ. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਨੋਰਮਲ ਉਹ ਹੈ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਆਈ. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਡੈਂਸਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੁਵਰਡ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਬੈਂਡ ਕਰੇਗੀ. ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਏ ਆਈ ਵੱਲ ਦੀ ਏ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਏ ਐਂਡ ਐਚ. ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਵੱਲ ਬੈਂਡ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਆਈ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰ ਗਏ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਤੇ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਉਹ ਆਈ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ. ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਿਆ. ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਏ ਐਨ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੈ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲਫਾ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਹੈ ਏ ਆਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗੰਮਾ. ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਪੋਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਯੂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ. डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल ये स्मॉल बी ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਪੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਆਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AOC. in triangle AOC ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ I ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲਫਾ ਤੇ ਗਾਮਾ. ਤੇ ਮੈਥ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਉਹ ਦੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ आई साढ़े को आ गया अल्फा प्लस गामा. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਪਰਚਰ ਹੈਗਾ ਸਮਾਲ. ਜੇਕਰ ਅਪਰਚਰ ਸਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਲਾਈ ਕਰਦਾ. ਠੀਕ ਆ, A ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਤੇ ਗਾਮਾ ਇਹ ਐਂਡ ਸਮਾਲ. Since aperture of convex spherical surface is small, so therefore point A
lies very close to point P. Therefore, alpha, beta, and gamma becomes small. अल्फा बीटा ते गामा ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਸਮੋਲ ਬਣ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਸਮੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ आई इक्वल अल्फा प्लस गामा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्फा ਤੇ गामा ਸਮੋਲ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਸਮੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ I इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट गामा। ਹੁਣ ट्राइंगल ANO ਵਿੱਚ ट्राइंगल ANO ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टेंजेंट अल्फा ਆਪਾਂ फाइंड करांगे। टेंजेंट अल्फा इज perpendicular AN over base NO क्योंकि अपर्चर सरफेस का स्मॉल है तो एंड पॉइंट भी पी दे क्लोज लाई करेगा तो एंड दी आप पी लिख सकते एन ओवर पी ओ इतने नोट दे सकते आप सिंस अपर्चर ऑफ surface is small, therefore NO is nearly equal to PO. In triangle ANC, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टेंजेंट गामा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ਸਾਡੇ ਕੋਲ EN ओवर बेस NC। और क्योंकि सरफेस का अपर्चर स्मॉल है तो एन पॉइंट फिर पी दे क्लोज लाई करेगा तो एन की जगह आप पी लिख सकते EN ओवर पी सी। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। पुट in इक्वेशन नंबर 1 तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई साढ़े को आ गया टेंजेंट अल्फा ये आ गया साढ़े को AN ओवर PU AN ओवर PO प्लस साइन टेंजेंट गामा ये साढ़े को आ गया AN ओवर PC। तो ये जी इक्वेशन है ये ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ट्रायंगल हो रहा है साढ़े को ACI इन ट्रायंगल ACI ये देखो गामा साढ़े को एक्सटीरियर एंगल ते आर ते बीटा ये साढ़े को है इंटीरियर एंगल। तो ये भी जोड़ा ट्रायंगल आप पढ़ते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जोड़ा दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होंगे। तो गामा जो साढ़े को आ गया दिस इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो इतों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर लिख सकते आप गामा माइनस बीटा। और क्योंकि ये एंगल्स है स्मॉल क्योंकि अपर्चर स्मॉल है तो इनू भी आप टेंजेंट के रूप में लिख सकते हैं। सिंस अपर्चर इज स्मॉल दे ये दो एंगल है स्मॉल इसलिए टेंजेंट के रूप में आ जाएंगे। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर साढ़े को आ गया टेंजेंट
गामा माइनस टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट गामा आप पहला फाइंड कर चुके हैं, साढ़े को AN ओवर PC आया सीगा। टेंजेंट बीटा आप देखना है, ट्राइंगल आप कंसीडर करांगे ANI इन ट्राइंगल ANI ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टेंजेंट बीटा, so this is equal to perpendicular साढ़े को AN ओवर बेस साढ़े को आ गया NI। और क्योंकि पर्चर स्मॉल है तो NP के क्लोज लाई करेगा तो N की जगह आप P ले सकते हैं, AN ओवर P आई आ गया साढ़े को। और टेंजेंट गामा तो टेंजेंट बीटा ਉਹਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਥਰਡ ਡੱਬਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। Put the values of tangent gamma and tangent beta in equation number third. The third equation साढ़े को आएगी R is equal to टेंजेंट गामा ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ AN ओवर PC माइनस साइन टेंजेंट बीटा ये ਸਾਡੇ को आ गया AN ओवर PI, AN ओवर PI। जेकर म्यू साढ़े को है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो म्यू आप लिख सकते म्यू इज इक्वल टू म्यू 2 ओवर म्यू 1, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। इन्हों फर्दर आप लिख सकते म्यू 2 ओवर म्यू 1, दिस इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R। और जेकर पर्चर स्मॉल है तो साइन I और साइन R इन्हों आप I ते R लिख सकते हैं, सिंस पर्चर इज स्मॉल तो साइन I is nearly equal to I and sin R is nearly equal to angle R। तो ये साढ़े को आएगा म्यू 2 ओवर म्यू 1 इज इक्वल टू I ओवर R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, म्यू 1 इंटू I ले सकते आप म्यू 1 इंटू I, दिस इज म्यू 2 इंटू R। और एंगल ऑफ इंसिडेंस ਲਈ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕੰਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ म्यू 1 इंटू AN ओवर PO प्लस AN ओवर PC, दिस इज इक्वल टू म्यू 2
आर साडे को जिहड़ा आया सीगा साडे कोई इक्वेशन सीगी ए एन ओवर पी सी माइनस ए एन ओवर पी आई। ब्रैकेट सॉल्व करिए म्यू वन इंटू कल हो रहा है कि ए एन सारे कॉमन है तो ए एन आप कैंसल कर सकते हैं ए एन ए एन ए एन कैंसल इक्वेशन साढ़े को रह गई म्यू वन वन ओवर पी ओ प्लस वन ओवर पी सी दिस इज इक्वल टू वन ओवर म्यू टू इंटू वन ओवर पी सी माइनस वन ओवर पी आई। तो ब्रैकेट जी सॉल्व करनी मल्टीप्लाई कर दो म्यू वन ओवर पी ओ प्लस म्यू वन ओवर पी सी इक्वल टू म्यू टू ओवर पी सी माइनस म्यू टू ओवर पी आई। तो जिहड़ियां टर्म्स दे नाल पी सी है उन्होंने आपां एक साइड ते रखांगे इनू इधर लैके जावांगे म्यू वन ओवर पी ओ इस टर्म नू इधर लैके आवांगे प्लस म्यू टू ओवर पी आई दिस इज इक्वल टू म्यू टू ओवर पी सी ये टर्म उधर जाके नेगेटिव माइनस म्यू वन ओवर पी सी। तो पी सी कॉमन है तो इन्हों आप लिख सकते हैं म्यू वन ओवर पी ओ प्लस म्यू टू ओवर पी आई दिस इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर पी सी। तो इस तो बाद आप न्यू पार्टियन साइन कन्वेंशन इत्थे अप्लाई करनी है। Applying new partition sign conventions PO ये डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल है इनू आप माइनस यू पुट करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस PO जी है इंसीडेंट रे की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है इस करके आ गई माइनस यू पी आई डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज ये बी आप मार्क की थी अलॉन्ग द इंसीडेंट रे है इसलिए ये आ गई प्लस बी। उस तो बाद पी सी जड़ा है पी सी इक्वल टू एंगल सॉरी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इनो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम होता है ते भी पी सी अलॉन्ग द इंसीडेंट रे है इसलिए ये आ गया प्लस आर आर का रेडियस ऑफ कर्वेचर उन्हें वैल्यूज आप पुट करांगे देयरफॉर म्यू वन ओवर पी ओ माइनस म्यू प्लस है म्यू टू ओवर पी आई प्लस म्यू टू ओवर पी आई प्लस बी दिस इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर पी सी आ गया प्लस है हाँ तो साढ़े को जी इक्वेशन आ गई वो आ गई माइनस म्यू वन ओवर यू प्लस म्यू टू ओवर वी दिस इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर कैपिटल आर। तो जेकर
ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ μ1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ। dividing both sides by μ1, इधर μ1 ना μ1 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया माइनस 1 ओवर u प्लस इधर आएगा μ2 ओवर μ1 ओवर v, दिस इज इक्वल टू μ2 ओवर μ1 माइनस μ1 ना μ1 डिवाइड हो गया, 1 आ गया ओवर r। तो μ2 ओवर μ1, since μ2 ओवर μ1 is refractive index μ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ μ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -1 ओवर u प्लस μ ओवर v, दिस इज इक्वल टू μ -1 ओवर कैपिटल R। सो ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਰੀਅਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1 ओवर u प्लस μ ओवर v इज इक्वल टू μ -1 ओवर r। तो इसके नाल अज का यह टॉपिक इत्थे कंप्लीट होता है। थैंक यू।